Hi everyone, I'm Harsh. I am the co-founder and CEO at OK Credit. At OK Credit, we help small businesses with their technological needs. India is a country of entrepreneurs, and the so called unorganized sector is powered by millions of entrepreneurs and is many times bigger than the organized sector. This is why VCs have been so bullish about companies like Bharat Pay and are building financial products for this segment. In this episode, your host Akshayta talks with Harsh Pokharna, the founder of OK Credit, which is offering a free digital ledger solution along with the financial products to this segment. OK Credit has raised almost $85 million till date from top VCs like Tiger Global and Lightspeed on the back of the viral growth that they have seen. Harsh shares his journey from the humble beginnings of OK Credit till where it is today and how they reached here. Stay tuned for the conversation and subscribe to the Founder Thesis podcast on any audio streaming app to learn from India's most disruptive founders. I also was like an integral part of our dramatics club. So मैं first year से fourth year तक काफी plays में, नुक्कड़ में, skits में हर तरह के चीजों में part लिया है. Inter college, intra college, festivals. I was also the cultural secretary of my hostel, so we used to do a lot of events. I just enjoyed doing new things. मतलब instead of sticking to कि जो वहाँ पे general expectation. I always liked doing things on my own. But when placements came, so again, because I had no plans, so my placements में बैठा, I got into Flipkart. Okay. But that, I got thinking. So I called Aditya, right, who was also going to Bangalore. तो हमारा summer vacations था, तो हम phone पे बात करते थे कि यार अपन भी खुद कुछ करेंगे, बैंगलोर जाके मिलते हैं, we will, like spend time together and we will do. That Flipkart stint was pretty small, huh? Yeah. That was like 6-8 months. Okay. So why did you switch so soon? Switch तो नहीं किया था, quit ही कर दिया था basically. The idea was कि when I got to Bangalore and Aditya, right, like who was my college friend, तो उसके साथ फिर हम लोग डिस्कस करने लग गए कि यार क्या करेंगे. गौरव भी इन्वॉल्व होने लग गया, राइट. लाइक दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि यार कुछ भी बनाने के लिए वी नीड टू लर्न कोडिंग, राइट. क्योंकि हम लोग हायर तो कर नहीं पाएंगे. वी डोंट हैव मनी, लाइक वी डोंट हैव सेविंग्स, सो वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग. And Aditya is a really good programmer, right? Like his first principles, his concepts are very good. और तो आदित्य के साथ रह के मैंने कोडिंग सीखना चालू किया. तो हम लोग, बिकॉज साइड में मैं कोडिंग सीख रहा था, तो मैं कई बार तो फ्लिपकार्ट में भी जाके अपना कोडिंग प्रैक्टिस ही कर रहा होता था, या फिर घर आके वुड बी मेकिंग सैम्पल एप्स एक्सेट्रा. एंड फिर अप्रेजल्स भी हुए बीच में. 6 महीने बाद यू गेट सम बोनस. तो उससे मेरे को थोड़ी सी पैसा आया हाथ में, थोड़ा सा समझ आया कि यार हाँ, मैं प्रोग्रामिंग में भी बढ़ रहा हूँ, तो व्हाई नॉट क्विट दिस. अभी मेरे पास ऐसी कोई लायबिलिटीज भी नहीं है. Got into the entrepreneurship. Okay. Like, did you have an idea when you quit कि ये करते हैं, or did you just say कि let's figure out, like? So basically the idea at that time was that because we had just gotten out of college, right? और तब number portability नहीं थी. So anyone who was going to different cities were changing their phone numbers, and they were broadcasting to everyone in their network कि this is my new number. थोड़ा सा inconvenient है if we have to call someone. So instead, why not build a phone contacts app जिसमें say if we are connected, if you have given me the permission, then whenever you change your number, it will automatically reflect in my contact book. So I'm always calling you on the right number. Yeah, okay. तो ये एक आइडिया था थोड़ा बहुत. तो इस पे हम लोग बना रहे थे. वेरी फ्रैंकली, मतलब आइडिया भी था, और उस समय हम एप्स को ऐसे भी देखते थे कि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. चलो ठीक है, दिस इज एन आइडिया, दिस इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड. बट द इंटेंशन वाज नॉट ओनली टू बिल्ड अ बिजनेस, बट इट वाज ऑल्सो कि यार चलो ऐप बनाना सीखेंगे, क्या करें. तो वो Okay. So, like, tell me that journey. You must have done multiple experiments before finally landing on OK Credit. So that journey which led up to OK Credit. As I said, right, तो हमने बहुत, like, I think we made some 7-8 products, right, or not all full scale, but 7-8 ideas पे हम लोगों ने continuous, and the three of us, right, like same ही team रही है. तो शुरू में हमने ये phone contact वाले से शुरू किया था. We called it Nishi. Then we did Clan Out.
Tomishi is a Japanese term for business cards. तो हमने वैसे रखा था. Clanout फिर हमने बनाया था. तो Clanout में again, like we were doing कि what are your friends doing in the city? And again, I think वो बहुत सी learnings थी, but again Clanout किया था. फिर we did. So that was like a hyper local social network types, like. So say if I can just go on the app, see what all my friends are doing. If someone's going out, someone's hanging out at their homes, and if I want, I can join. If I can also, if people are open, maybe they can make their events public and other folks can see. Okay. फिर बीच में 2015-16 में basically edtech type के startups करने की कोशिश की थी, where we were making these physics labs, chemistry labs, experiments on your computer for kids who don't have access to labs, right? कैसे कंप्यूटर पे आप क्लिक करके फिजिक्स सीख सकते हो, केमिस्ट्री सीख सकते हो, जो like a virtual lab basically. हाँ, virtual lab. तो वो बनाने की कोशिश की. Okay. फिर बीच में ब्लॉकचेन आ गया था. हम 2016 में बेसिकली 15-16 में ही वी वर लाइक हेवीली इनटू क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन. तो वहां पे 2-3 प्रोडक्ट्स बनाए थे. वी बिल्ट अ वॉलेट टू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसीज. मतलब उसमें उस समय हम काफी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स करते थे. We would just get involved with a coins community and we will check that, hey, what are your needs? What can we do for you? And then they would pay us in their coins. तो वो सब करते थे. How did you meet your rent and living expense and all? Were you earning during this period? हाँ, so बीच में after I quit Flipkart, तो again थोड़ी savings थी और rent तो था नहीं because I started living with Aditya, so he didn't charge me rent. So उसी के लिविंग रूम में रहता था. तो वो था. फिर उसके बाद बीच में we worked for a while in Jio Money. As तो हुआ क्या कि मेरे को Android, I learned Android, I got decent at Android, and then we got an opportunity, both me and Aditya, to work together in Jio Money as the first two people of the organization. पूरा setup करना है. तो that got us excited कि नहीं यार, चलो पूरी नई organization है, startup जैसा ही है, तो चलो ये try करके देखते हैं. बट अगेन थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अपना स्टार्टअप ही होता है. मतलब दूसरे कंपनी स्टार्टअप होता नहीं है. सो हमने क्विट कर दिया. तो उससे फिर थोड़े से पैसे मिले थे. सो वहां से फिर उसको यूज करके सस्टेन किया. देन आई अलोंग विथ व्हेन वी गॉट इनटू क्रिप्टो, और जब प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो देन आई आल्सो स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग for some people. Because that time not a lot of people knew about blockchains and crypto, right? And बहुत ज़्यादा demand थी developers की. So I could just land 2-3 projects that I could do in my free time and make some money. Crypto project भी किया था एक. Again service, हाँ, yes. So बीच में we were also becoming a service company, like something like an Infosys वगैरह, right? कि अब हम crypto के projects करेंगे लोगों के लिए. We also landed 1 or 2 projects. एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट भी किया पूरा. बट वी रियलाइज्ड कि यार ओनरशिप होती नहीं. यू डोंट हैव एनी ओनरशिप ऑन द प्रोडक्ट. यू आर जस्ट समवन जिसको एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस दे दिया है, आपको वो बना के देना है, आप डॉलर पर आर आपको मिलेगा और आप वो करते रहो. बट that was not something which we wanted to do. We wanted to build our own product जहाँ पे हम खुद फीडबैक लें, डिसीजंस लें, स्केल करें. तो फिर वो वाला काम भी हमने छोड़ दिया. उससे भी थोड़े पैसे कमाते. Okay. And then finally after all of this, उसमें क्या थी और चीजें हुई. फिर one blockchain company tried to acquire us, acquire us, कि चलो हमारे साथ Silicon Valley चल लो, like you guys stuff, so nice. we'll give you good salaries and all of that. वो भी काफी difficult था हमारे लिए decision, because we didn't have anything, right? Like इतने टाइम से फाइट मार रहे थे, कुछ चीजें चल नहीं रही थी. बाहर चीज में ऐसा लग रहा था कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. तो और टेम्पटिंग ऑफर ही था कि यार सिलिकन वैली चलते हैं, इनमें काम करते हैं, अच्छे पैसे मिलेंगे. बट किसी तरह से बिकॉज वी हैड दिस विजन कि हमें अपना स्टार्टअप करना है, तो वी डिनाइड दैट ऑफर. और उसके बाद हम थोड़ा और सीरियस हो गए कि यार अब हम अगर इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, तो व्हाट डू वी रियली वांट टू डू. एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट YCs, startup, Paul Graham कैसे, और उन सारी चीजों से ना हम लोगों को थोड़े माइंडसेट शिफ्ट हुआ हमारा कि हाउ शुड वी अप्रोच बिल्डिंग आवर स्टार्टअप. और तब फिर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना शुरू किया. सो द थिंग दैट स्टक विद अस वाज दैट सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स.
राइट, जो हमने नीश में किया था, बट उसके बाद जो सारी चीजें थी ना, हमें लगता था कि हम थोड़े हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, विच आर एक्चुअली नॉट रियली प्रॉब्लम्स फॉर एनीवन. We have to solve that which are real problems for someone, right? Not something कि हम सोच रहे हैं कि किसी के लिए प्रॉब्लम. तो फिर हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार आसपास क्या चल रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है. और ओके क्रेडिट इमर्ज्ड आउट ऑफ दैट कि हमारे अगेन वी वर लिविंग इन दिस अपार्टमेंट, सामने एक ग्रोसरी स्टोर था, हम उससे क्रेडिट लेते थे, 2 साल हो गए थे उससे क्रेडिट ले रहे थे. फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार कितनी प्रॉब्लम है, हर बार जाते हैं 15-20 मिनट वेट करना पड़ता है. यू नो दैट गाय वुड टेक आउट ऑल द बिल्स, हमारा टैली करेगा, फिर कभी कोई बिल फट जाएगा, मिट जाएगा, आर्गुमेंट्स होंगे, राइट? वी वोंट नो कि ये हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, नहीं कर रहा. तो वी थॉट दिस वाज अ प्रॉब्लम. तो हमने सोचा, और ऐसे ही हम वी आर एक्सप्लोरिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स, राइट? सो और भी प्रॉब्लम्स मिल रहे थे. तो हमने सोचा व्हाई डोंट वी गो टॉक टू दिस गाय. वी वेंट देयर, ही सेड इट्स अ बिगर प्रॉब्लम टू हिम, राइट? बिकॉज वो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को सर्व कर रहा है, 2 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को. ही हैड सम 100-200 कस्टमर्स ही वाज गिविंग क्रेडिट टू. ही वाज लाइक कि भाई आई हैव टू मेंटेन ऑल द बिल्स, आई हैव टू मेंटेन, मेरे को रोज रात को हिसाब पढ़ना पड़ता है, मुझे लोगों के पीछे भागना पड़ता है टू कलेक्ट देयर मनी, आई हैव टू डू ऑल द जिग जिग, right? So it's a problem for me. So that's when we realized कि it's a bigger problem for him, right? And why don't we build something that solves the problem of both of us? कि उसका भी काम हो रहा है, हमारा भी काम हो रहा है, and that's how we started. So what exactly did you build then? And these kirana owners, did they have smartphones? Yes, that guy had smartphone. Their employees, not all of their employees had, which was problem for us because the kirana जो हमारा grocery store था हमारे सामने, he was a fairly decent mid-sized grocery store, right? तो उसमें the owner was not always there. He would come, कभी दिन में आ गया, कभी शाम में आ गया, but mostly the employees were running the store. So and for our solution to work, it has to be adopted by the employees as well because बंदा ही लिखेगा, right? But owner तो हमेशा store पे होगा नहीं. तो हाँ, सो ओनर का था. तो आई थी ये सब इश्यूज आए थे कि स्टाफ के पास नहीं है, या फिर स्टाफ इज नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, राइट? उसको थोड़ा लोकल लैंग्वेज में चाहिए. स्टाफ को यूआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. हम लोगों के लिए तो वी वर सो यूज्ड टू एप्स कि हम तो कुछ भी यूआई बना लें, अपन को लगता है अरे कितना स्लीक है, यू नो, सो नाइस. बट दैट डजंट वर्क फॉर देम, राइट? दे डोंट केयर अबाउट दिस, दे केयर अबाउट सिंप्लिसिटी कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, आई कैन अंडरस्टैंड इट. तो वो सारी बहुत लर्निंग्स मिली. So you basically built like a accounting, or let me not say accounting, but like a receivables app which will management. receivables payables कहते हैं. कि आपने मार्केट में कितना उधार दे रखा है. So you are always up to date with that because most of the businesses don't even know how much credit they have given out in the market, right? That's one. And second, our app gives you that visibility, and second, it makes your collections faster. कि टाइम पे रिमाइंडर भेज देगा सामने वाले को, राइट? आपको याद दिला देगा कि इसको रिमाइंड करना है, तो आप उसको रिमाइंड कर दोगे, तो आपका कलेक्शन फास्ट हो जाएगा. बिकॉज अगेन यही हमने सीखा है कि कलेक्शंस में भी ना, लाइक दिस डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इफ समवन सेड कि यार मेरे को, मैं 8th को पैसे दे दूंगा, एंड इफ यू डोंट फॉलो अप ऑन 8, आप 11th को फॉलो अप करोगे, he will be like कि अरे यार मैंने किसी और को देती है, मैंने 8th को आपको कहा था, right? So you have to be very disciplined and systematic in your collection process to you know, like basically make it better. And did you think of how you will monetize? Like did you think कि वो किराना वाला पे करेगा सब्सक्रिप्शन इसके लिए, या? तो हमने सोचा तो था, हमने अपने फर्स्ट यूजर से पैसे भी लिए थे ऐप के, उसने दे भी दिए थे. बट क्या लिया था आपने? लाइक वी 400 मिल, उस तो बेसिकली पैसे का लिया था. हमारा 1100 रुपए का उधार था उसकी दुकान पे. दिया कि अरे चिल, लाइक डोंट गिव इट, इट्स फाइन. सो आई थिंक 1100 का क्रेडिट हमारा माफ हो गया था. हाँ, सो बट हमारा थॉट प्रोसेस शुरू से ही ये था ना कि यार सी, वी डोंट वांट टू चार्ज फॉर सॉफ्टवेयर. We don't think software is a very expensive. हम 3 लोग ने मिलके बना लिया है, उसको दे दिया. It's not very expensive for us, right? What we want to essentially do is कि get people, you know, digital, get people on technology and build their digital footprint. कि यार अब हमें इतना डेटा मिल रहा है, वो बंदा हमें 100 कस्टमर्स के बारे में बता रहा है कि how does he deal with them, repayment behaviors कैसे हैं, cash flow कैसे चल रहा है, क्या सेल कर रहा है, you know, किसको क्या सेल कर रहा है. So we are getting all of this data,
And basically, we want to use this data to build more services on top, right? For example, financial services, marketing services, ताकि जिससे हम पैसा कमा सकें. We don't think कि software का हमें charge करना चाहिए. So, like marketing service would be, for example, you could tell FMCG companies that these are the biggest retailers in this area, and you can do a promotional campaign. इसका demand इस area में ज़्यादा है. ये सारी चीजें. अभी तो थोड़ा हम फाइनेंशियल सर्विसेज पे ज्यादा फोकस्ड है बिकॉज ऑफ वी नो द रीपेमेंट बिहेवियर्स, हिज कैश फ्लोज, सो वी कैन गिव वेरी कॉन्टेक्चुअल लाइक लेंडिंग सर्विसेज टू हिम कि यार आपको अपने सप्लायर को 20,000 रुपए पे करना है, चलो हमारे सर्विस के थ्रू पे कर दो. हमें पता है कि आपका 1 लाख रुपए मार्केट में फंसा हुआ है, ओके यू कैन यूज अस टू गेट दैट, एंड व्हेन यू गेट दैट मनी गिव अस. सो वो सारी चीजें. Okay. How did you see this opportunity कि ये lending की opportunity है? Because this is not like something which you must have been like 20 by that time, 2021. So at that age, you don't really understand कि lending is a big opportunity और आप data collect करके उसके basis में loans दोगे and that is a big business. वो आपको understanding कैसे आई that this would be a big opportunity? क्योंकि हम लोग इतना research करते थे ना, startup हमें करना ही था, तो हम startup news पढ़ते थे, इंटरनेट की चीजें पढ़ते ही रहते थे. वी ऑल्सो हैड हमारे कॉलेज से कुछ अच्छे स्टार्टअप्स भी निकले हुए हैं हमसे पहले, सो वी ऑल्सो हैड दैट. तो एक थोड़ा नेटवर्क. So you launched the product. So what did you launch at? Like basically a simple interface जिसमें you can create your customer का account through a phone number or something, I guess. कि आप अपना basically say when you come to my shop, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपके कॉपी में एक पेज आपके नाम पे कर देता हूँ कि ओके अक्षय, एक पेज आपके नाम पे कर दिया कि अभी अक्षय ऊपर लिख दिया, आपका एड्रेस लिख दिया और फोन नंबर लिख दिया, एंड देन एवरी डे डेट के हिसाब से कितना कितना क्रेडिट ले जा रहे हैं, कब कितना पेमेंट किया. सो वेरी सिमिलरली यू कम टू द ऐप, यू ऐड योर कस्टमर, मेक अ पेज फॉर देम बेसिकली. आपने कस्टमर डाला, उनका एड्रेस डाल दिया, फोन डाल दिया, एंड देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग जब भी आएगा. तो और एडिशनल चीजें हमने क्या की कि जो बुक्स नहीं कर सकती, कि जैसे आप मैंने अगर रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन तो आपको एसएमएस आ जाएगा उसी समय. Okay, so that we both are on the same page. कि यार अक्षय, you took 500 rupees credit and your balance is 1,500 rupees. और उसमें आपको एक लिंक भी आ जाएगी ताकि आप उस पर क्लिक करके आप भी अपनी हिस्ट्री देख सकते हो. और फिर वो दोनों पार्टी सेम पेज पे रहेगी, और फिर ये बंदा जो मर्चेंट है वो रिमाइंडर भेज सकता है, आपसे पैसे कलेक्ट कर सकता है. Okay. And इसका मतलब वो go to market क्या था? Like how did you get adoption for it, and how did you initially तो you must have bootstrapped it, ना, like when you launched? Definitely पूरा bootstrap भी था. तो जो पैसे हमने ये सब फ्रीलांसिंग करके या वो ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट करके कमाए थे, तो वो यूज कर रहे थे हम. So we worked with this one user, Food Choice, right, जो हमारा ग्रोसरी था. उसको हमने पूरा ऑनबोर्ड कराया कि उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व की, उसको जो भी इश्यूज थे, राइट. उसने एक महीने तक you were like co-building it with him. वो जो भी फीडबैक देता था you would incorporate. ठीक है. एक महीने तक बेसिकली उसको यही प्रॉब्लम थी. तो बेसिकली वो हमें ट्रस्ट करता था क्योंकि हम 2 साल से उसके कस्टमर हैं. So he was okay trying out a solution with us. But for a month, he would record on his notebook also, and he would record on OK Credit also. And every day he will check, यार सारा टोटल सही आ रहा है ना, ये ऐप सही टोटल कर रही है, ऐप डेटा उड़ तो नहीं जा रहा, ऐप उड़ तो नहीं जा रही. He had lot of issues क्योंकि रिसीवेबल्स है ना, अगर आपका डेटा उड़ गया तो now you don't even know आप किससे कितना रुपए लेना चाहते हो, and that's all goes into loss. उसको महीना भर तो हमें यही ट्रस्ट करने में लगा. फिर उसने अडॉप्ट किया, उसके एम्प्लॉइज ने अडॉप्ट किया, तो 1.5 महीना 2 महीने में वी कुड ऑनबोर्ड आवर फर्स्ट यूजर. एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि अगर ऐसे हम ऑनबोर्ड करेंगे तब तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा लोगों को ऑनबोर्ड करने में. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू न्यू पीपल, वी यूज्ड देयर रेफरल्स. तो देन वी आस्क्ड फूड चॉइस फॉर अ रेफरल. He referred us to his brother who was running a shop in another locality. So because of that referral, that guy had inherent trust in us. कि हाँ मेरा ये स्टोर पे यूज हो ही रहा है, तो मैं भी सोल्यूशन लगा दूंगा, सब
टोटल अच्छा होगा, डेटा विल सेफ्टी रहेगा, ऑल ऑफ दैट। तो उसको ऑनबोर्ड करने में हमें 1 वीक भी नहीं लगा। Okay. कि हम गए उसके दुकान पे, सब समझा दिया, उसके पुराने ट्रांजैक्शंस ऐप पे डाल दिए, एंड लाइक ही स्टार्टेड यूजिंग, प्रॉब्लम्स तो हो गया। इसमें one question here about the product. So when you are entering a transaction, वो SKU कितना granular level में store होता है, और will he just say कि 10 रुपए की सिगरेट, और will he also specify classic? No, नहीं, so ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, it is optional, everything is optional, the only compulsory thing is amount, कि आपने 50 रुपए उधार दिया, अब वो 50 रुपए की आप चाहो तो लिख लो नीचे सिगरेट, आप फोटो अटैच करो, फोटो भी अटैच कर दो, तो कई लोग वो करते हैं, कई लोग नहीं करते। ठीक है, got it, okay, ठीक है, so you got your second customer, then this stage you were still doing it as a paid app thing. Second से हमने फिर चार्ज करना शुरू नहीं किया, for us just getting users onboarded and start using our app was more important, तो हम वो फ्रिक्शन निकालना चाहते थे बीच में। right, okay, वो हमने किया, और फिर उससे और रेफरेंस किए, तो शुरू के 10, आई थिंक लाइक अराउंड 10-50 यूजर्स हम रेफरल्स से ही ला रहे थे, और थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हो जाते थे, रिटेलर से कहते थे यार हमें भी अपने ग्रुप में एक बार ऐड कर दो, राइट, वहां पे हम थोड़ा कोलैटरल, मतलब मार्केटिंग जो पोस्टर्स भेज देते थे, तो वहां से हमारे पास कुछ लीड्स आ जाती थी। तो शुरू में वी यूज्ड आवर एग्जिस्टिंग यूजर्स कम्युनिटी टू गेट यूजर्स। एक बार वो हुआ, फिर हमने लाइक वी रियलाइज्ड कि यार अब ये तो हो ही रहा है, लेट्स आल्सो गो आउट इन द मार्केट, हमारा प्रोडक्ट भी थोड़ा स्टेबल हो गया है, और दुकानदारों से खुद ही बात करते हैं और करते हैं। तो उससे पहले तक ना वी वर वेरी ग्रोसरी फोकस्ड, क्योंकि हम ग्रोसरी से शुरू किया था, ग्रोसरी के रेफरल्स थे। जब हम मार्केट में गए तो हमें रियलाइज हुआ कि यार ये तो अक्रॉस द कैटेगरीज सोल्यूशन चाहिए। आप सिगरेट की दुकान पे जाओ, वो भी उधार दे रहा है, चाय की दुकान, कपड़े की दुकान, मोबाइल की दुकान, रिचार्ज उधार पे हो रहा है, मेस कैंटीन में उधार पे चीजें चल रही है, लाइक हर जगह ही उधार पे चल रहा है, राइट। एंड जब हम ये तो मेनली B2C, आप B2B देखोगे तो B2B इज आल्सो रनिंग मेनली ऑन क्रेडिट, राइट। आप सप्लायर के पास जाओ तो वो सारे रिटेलर को उधार ही दे रहा है, होलसेलर के पास जाओ तो वो चल रहा है। तो वी रियलाइज कि यार ये तो आवर सॉल्यूशन इज एक्चुअली will work across categories, across the supply chain. And so फिर हम बाहर जाने लगे, फिर हम और दुकान के पास जाने लगे, फिर हम WhatsApp groups, like basically cold like cold walk-ins, and उनकी दुकान पे जा रहे हैं, थोड़ी देर बात कर रहे हैं, फिर किसी तरह से ओके क्रेडिट बीच में ले आते हैं, like sales. Okay. And why did you name it OK Credit? So हाँ, तो उस समय we were very fascinated by this HTTP library called OK HTTP, right? Okay. What does that do? हाँ, so what is a HTTP library like? Okay, so HTTP क्या होता है ना कि आप so basically internet protocol है कि how do you talk to another server, so how will my server talk to your server, वो HTTP protocol पे होता है कि ये प्रोटोकॉल है कि मैं आपको 404 एरर भेजा तो इसका मतलब आप पेज नॉट फाउंड करोगे, अगर मैंने आपको 200 स्टेटस भेजा इसका मतलब आप ओके समझोगे। तो ये HTTP का प्रोटोकॉल है। अब बिफोर व्हेन वी यूज्ड टू बिल्ड एप्लीकेशंस, हमें पूरा HTTP का ये लाइब्रेरी खुद लिखनी पड़ती थी कि सारा लॉजिक, राइट। बट Squire came up with this great library called OK HTTP which made lives much simpler for developers, कि अब आपको कुछ ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं लिखनी है, आपको बस ये लिखना है कि हे सेंड माय रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर, और फिर वो सब इंटरप्रेट कर देगा कि सर्वर को चली गई रिक्वेस्ट, क्या स्टेटस आया, उसके हिसाब से सब हो जाएगा। वी वर बिग फैंस ऑफ दैट। तो हमारा एम था कि हम भी क्रेडिट को ऐसे ही प्रोटोकॉल कर देंगे, राइट, इट विल बिकम अ प्रोटोकॉल कि कैसे ओवरऑल जो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट है, तो इसलिए हमने उसका like by the time you got into YC, तब तक क्या scale हो गया था? How much had you scaled it up to, and what was that YC application process like? So YC में तो हमने 4 बार अप्लाई किया था, 4-5 बार है। अच्छा, but not with OK Credit, 3 बार, first 3 times with different ideas. I think Clanouts से शुरू कर दिया था हमने अप्लाई करना, फिर last 2 times with OK Credit। तो first time तो हमारा नहीं हुआ था because we were very early, we had some 10-20 users. We also couldn't explain our story very well.
Okay. वो सारी चीजें भी थी. बट उसके बाद हमारा पहले एक्चुअली लाइट स्पीड का राउंड हो गया था, सीड राउंड. आफ्टर अ मंथ ऑफ दैट, when we were rejected from Wisely. Acha, okay, when is this? When the Lightspeed round happened? This is 2018 Jan. Okay. So a couple of months after you launched. No. So we started working with Food Choice in April 2017. And we were also not very sure कि यार कैसे grow करेगा. तो हम लोग खुद ही से कर रहे थे. We reached some 25, 30, 50 users. September, October में what started happening was कि तब हमारा login process कैसा था ना, we had not launched on Play Store. So we went to a person, right? अगर उसको अच्छा लगता था हमारा ऐप, तो हम उसको APK ट्रांसफर कर देते थे उसके फोन में, और उस वहीं पे ये एक लॉगिन पासवर्ड बना देते थे अपने सर्वर पे, एंड वी यूज्ड टू गिव इट टू हिम. अच्छा, ये आपका लॉगिन आईडी और ये आपका APK, अब आप लॉगिन करके यूज करो. After we reached these 40-50 folks, what we started seeing was that people starting sharing APKs. Share it. कि लोगों को अच्छा लग गया. वो बंदा कह रहा है भाई मुझे भी दे, वो कह रहा है यार ये ले APK शेयर कर दिया. अब APK शेयर कर दिया तो, लेकिन उसके पास लॉगिन आईडी तो है नहीं. इफ लॉगिन आईडी नहीं है तो वो यूज कैसे करेगा? तो वहां पे एक फोन नंबर हमारा लिखा हुआ आता था, वो उस पे, वो मेरा फोन नंबर था उस पे, तो वो उसको कॉल करते थे. एंड देन फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, लोग APK शेयर कर रहे पड़े, एंड नए अकाउंट बनाने की रिक्वेस्ट आए जा रही है. बाय लेट सितंबर 8 सितंबर में ऐसी ही हमारे पास आने लगी कि हम सुबह से शाम तक बस अकाउंट्स बनाते रहते थे, राइट? मैं और कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, राइट? सुबह से उठा हूं, देख रहा हूं 5 मिस्ड कॉल है, और इफ यू टॉक टू अ पर्सन, राइट, इफ यू कॉल देम, दे टॉक टू यू फॉर हाफ एन आवर, राइट? वो पूरी सब समझ जाएंगे कि आप कौन हो, डेटा कहाँ जाएगा, आप क्यों फ्री में क्यों कर रहे हो, लाइक क्या ये वो, लाइक सारी चीजें समझना चाहते हैं. So when they would ask free में क्यों कर रहे हो, you would tell them कि हम इससे फिर आपको लोन्स देंगे या all? नहीं. What would you tell them? नहीं बताते थे. हम ये बोलते थे कि हम बाद में प्रीमियम फीचर्स लाएंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कि हमें एसेंशियली इतना नहीं बताते थे, लोन्स वगैरह वो सब. राइट. सो उससे हमने किया. तो फिर क्या हुआ कि देन वी रियलाइज किया दिस इज नॉट गोइंग टू स्केल. मतलब कि हम पूरे दिन भर बस अकाउंट ही बनाते रह जाएंगे तो काम कब करें, राइट? सो देन वी रियलाइज कि चलो लेट्स मेक सेल्फ सर्व, कि बंदा खुद आए, खुद अपना OTP रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बनाए, काम चालू करे प्ले स्टोर से. वी डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑनबोर्डिंग जर्नी. तो फिर हमने सेल्फ सर्व ऐप बनाया, प्ले स्टोर पे लॉन्च किया अक्टूबर में. एट दैट टाइम वी वर लिविंग इन शेयरचैट्स ऑफिस. तो बेसिकली तब तक हमारे पैसे खत्म हो चुके थे, राइट? जो तो अब हमारे पास था कि हमारे पास सर्वर रन करने का कुछ पैसा चाहिए था और रेंट देने का पैसा नहीं था. तो फिर हमने अपने बेसिकली ये शेयरचैट के फाउंडर्स हमारे बैचमेट्स हैं कॉलेज के. तो हमने उनको कहा कि यार क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें ऑफर कर दिया कि अब हमारे ऑफिस में रह लो. तो हम 3 महीने रह लो, मतलब लाइक वहीं पे रात को सोते थे. 24/7, राइट? अच्छा, कार भी वहीं करते थे, वॉशरूम यूज करते थे, खाना भी इन्हीं का खाते थे, एम्प्लॉइज के लिए होता था. और वहीं सोते थे. उनका साइड में ऑफिस में साइड में जगह थी, तो वहां स्लीपिंग बैग ले लिए थे 3 हमने. तो उसमें 3 स्लीपिंग बैग में हम तीनों सोते थे और वही काम करते थे. तो अब पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन तब लॉन्च किया तो फिर अचानक से हैवी ट्रैफिक आने लग गया, बिकॉज प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया, लोग शेयर कर रहे हैं, खुद से अकाउंट बना के यूज कर रहे हैं. सो वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ दिस इनसेन ट्रैफिक, एंड बस लाइक so that was something very new, because no one had that time seen a SME company grow so fast. That also without any marketing, without any feet on street, just 3 like boys living in someone else's office, और वहां से बस ग्रो कर रहा है. तो अब ये देख के तो फिर शेयरचैट के फाउंडर्स को भी लगा कि यार यहाँ कुछ है, और उन्होंने हमें अपने इन्वेस्टर्स से कनेक्ट किया, लाइटस्पीड से. और फिर so we got connected to Lightspeed को भी पसंद आया. They had also never seen something like this, something that was growing word of mouth organically, without any sales team, without any marketing. December 2017 में हमारी बात होने लगी, January में close. And how much did you raise in that? We raised $300,000. And the YC application got successful shortly after that. Shortly after that.
So what kind of user growth were you seeing by that time, like 2018 में? तब तो बहुत अच्छी ग्रोथ थी, राइट? लाइक तब तो बिकॉज इट वाज जस्ट स्टार्टेड, बहुत सारे अर्ली अडॉप्टर्स थे, तो वी वर growing every day basically, right? Like no marketing, no WhatsApp groups में भेज रहे हैं कंटेंट, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को करे शेयर करो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं, सो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट. So what did you learn in YC then? In terms of how to build it as a business in a better way and how to scale it better and all that. Like, how did YC help? So I think YC for us, मतलब वही है कि YC ने बहुत सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स रीइंफोर्स किए कि एक तो बस वो होता है ना कि आपकी वैलिडेट होती है थिंकिंग कि when you आप सोचते हो कि हाँ ऐसे करना चाहिए, and then there are these experienced people who have seen so many startups and gotten so many experience, also validating some of the concepts through you think, validating how you think, and telling you stories of how other entrepreneurs have thought. वो I think बहुत सारी learnings validate होती हैं, नई वो first principles approach एक थोड़ी और reinforce होती है. So tell me the product journey from there onwards. Like, did you add on monetization features, or like did you use other ways for growth hacks for increasing adoption? And how was 2018 for you? तो again, so 2018 भी हुई था. So basically YC के डेमो डे के पिच पे भी हमारा जो मेन चीज थी वो थी कि this much growth at zero marketing cost, right? तो वो था. तब भी हम लाइक पूरा प्रोडक्ट लेड ग्रोथ पे ही फोकस करते थे, कंप्लीटली ऑर्गेनिक. 2018 ऐसे ही रहा. 2018 के लेट में बेसिकली खाता बुक इमर्ज करने लगा. बेसिकली वो भी हमारे YC बैच में ही थे, तो तब वो इमर्ज करने लगे. तो तब फिर हम लोगों ने 2019 में वो हुआ कि कंपटीशन आ रहा है, अब मार्केटिंग करनी है, इन्वेस्टर्स भी उस चीज पे फोकस करने लगे. तो फिर देन वी स्टार्टेड डूइंग डिजिटल मार्केटिंग. और फिर अगेन इनिशियली CACs वर टू लो बिकॉज मतलब बिल्कुल ही नया सोल्यूशन था, ज्यादा ऐसे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते थे मार्केट में. और मर्चेंट्स को भी उस समय बहुत लोग टारगेट नहीं कर रहे थे, तो CACs सुपर लो थे उस समय. तो हम लोग काफी तेज ग्रो किया 2019 में और 20 के स्टार्ट में. It was essentially the core product remained the same, like the receivable management. हाँ, हमने रिसीवेबल में फिर पेबल्स जोड़ दिया इसके बीच में कि एक तो रिटेलर की ये प्रॉब्लम है कि मैं को किससे कितना लेना है, एक दूसरा ये भी है उसको मेंटेन करना पड़ता है कि मेरे को किसको कितना देना है, कि मेरे को इस सप्लायर से मैंने कितना दे दिया है. क्योंकि उस सब का भी वो ट्रैक रखते हैं कि मैंने सप्लायर को 25 देना था, 12 दे चुका हूँ, उसकी एक रिसीट, ये सब. तो फिर हमने रिसीवेबल्स और पेबल्स उसमें ऐड कर दिया. तो अब हमारा प्रोडक्ट वो हो गया कि आप वो भी उधार ले दे कर रहे हो. Did you also like build in a network effect in the sense that I'm using OK Credit for my receivable payable, someone else who is my supplier is also using it, तो हमारा अपने आप वो synchronize हो जाएगा because वो phone number तो आपके पास है ही दोनों का. Exactly. तो ये हमारी shared ledger functionality है. Did you raise more funds in 2018? Yeah, like what was the funding journey like? डेमो डे पे भी रेस फंड्स, YC के डेमो डे पे. तो हमने 1.5 मिलियन रेस किया था वहां पे लगभग YC के डेमो डे पे. एंड देन फिर 2019 में वी हैड 2 फंडिंग राउंड्स, आवर सीरीज A and सीरीज B. And how much were each of these? So series A was for a $15 million and series B was around $65 million. Amazing. That 65 million is like probably us time pe at least it must have been one of the biggest series Bs of that time, right? हाँ, मतलब one of the big, of course, if not the biggest, yeah. And this was on the back of what? Like, what was the pitch to investors? I mean, for such a massive round, I'm curious to learn what was the vision you showed to investors? How did it actually happen? So vision again वही था. Basically, बहुत high growth थी. So as I said, right, we were growing like super fast, and our stickiness, retention, all of that was
वेरी गुड, राइट? कि हम इतना तेज ग्रो कर रहे हैं और बंदा हमारी ऐप पे आगे अगर यूज करना चालू कर रहा है तो देन ही विल स्टिक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड वी आर Okay. गेटिंग insights into so many offline transactions that no one else has insights into. So और वो भी सब बिना feet on street के, सब digital, organic. Like, what kind of monthly sign-ups were you seeing in 2019? How was 2019 in terms of the trajectory? मतलब यार मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है, बट आई वुड से आराम से 5 लाख 10 लाख साइन अप्स अ मंथ मे बी, मतलब Wow, 5 लाख amazing. तो होंगे Okay. ही। And what is the differentiation between you and Khatabook? Like, तो खाता because बुक उस समय काइट कर रहा था, खाता बुक उस समय खाता बुक कर ही रहा था जब हमारे साथ था। वो एक Okay. अलग ऐप बना रहे Okay. थे, एसएमएस का स्पैम फिल्टर सॉर्ट ऑफ बना रहे okay, okay, बट आई थिंक वहां पे उनको इतना सक्सेस नहीं मिला, तो फिर उन्होंने पिवट मार लिया खाता बुक पे बाय एक्वायरिंग अ कंपनी। okay, okay, okay. वही है थोड़ा, आई थिंक एडमिरेशन या हम लोगों से। So 2019 was like a massive fundraise year for you. So did your approach change? Like, till then you were doing product-led marketing. You were not spending on customer acquisition and नहीं नहीं, वो तो अब वाई कॉम्बिनेटर तक की कहानी है। वाई कॉम्बिनेटर के बाद से सीरीज ए के बाद तो फिर हमने स्पेंड करना चालू कर दिया। okay, okay. And how were you acquiring? Like, was it through Facebook and Google AdWords and all that? फेसबुक, गूगल, टिकटॉक था उस समय, तो टिकटॉक और काफी ये अपने शेयर चैट और इस तरह के भी प्लेटफॉर्म थे। And मतलब पिच क्या था मर्चेंट के लिए कि आपका पैसा जल्दी कलेक्ट करो वापस, बेसिकली। Okay. Okay. Got it. Okay. So, like, did you start monetizing in 2019? Yeah, it was the नहीं, focus was still growth. नहीं, उस समय फोकस वाज स्टिल ग्रोथ। हमने मोनेटाइजेशन कुछ चालू ही किया था, बट फिर 2020 में कोविड हिट हो गया, और Okay. कोविड हमारे लिए काफी डैमेजिंग था इन द सेंस कि इतने सारे शॉप्स बंद हो गए, कई लोग तो परमानेंटली आउट ऑफ बिजनेस हो गए, बहुत तो हमारी एक्टिव यूजर्स कुछ 50-60% ड्रॉप हो गए थे Okay. कोविड के Okay. टाइम। तो फिर हमारा Okay. पूरा Okay. एफर्ट फिर से ये किया कि भाई ग्रोथ वापस लाओ, और ये जो यूजर्स हैं इनको वापस लाओ। तो धीरे धीरे हम एफर्ट मार रहे थे, नए वैल्यू प्रोपोजिशन बनाए, फिर क्योंकि मार्केट अपने आप खुलने लगा तो फिर से ग्रोथ आई, फिर सेकंड वेव आई, फिर पूरा चला गया, फिर गया। तो फिर हमारा जो मोनेटाइजेशन पे जितना हम एफर्ट मारना चाहते थे 2019 के बाद उतना मार नहीं पाए, गिवन कोविड और बैक आर यूजर्स, बट वो हमने अच्छा काम किया। वी आर एबल टू क्रॉस आवर प्री कोविड पीक विद मिनिमल मार्केटिंग, मतलब कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं, जस्ट विद स्टिकीनेस दैट वी हैव, पुश नोटिफिकेशन कैंपेन्स, बहुत सारी मतलब अलग अलग चीजें करके हम लोग अपने यूजर्स को वापस ला पाए। Okay. Okay. तो फिर उसके बाद आई थिंक सेकंड वेव के बाद फिर हमने थोड़ा मोनेटाइजेशन सीरियसली काम करना चालू किया। Okay. So 2019 में did you prioritize that this is how we will monetize first? Because there are like many ways to monetize. As you said, you could monetize through FMCG companies or through lending or through insurance or through neobanking. So what was your priority? उस समय तो हमारा प्रायोरिटी यही था कि हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एट दैट टाइम मतलब कि हमने हायर भी काफी स्पीड पे ही किया था, गिवन सीरीज ए भी हुआ था, तो वी हैड इनफ पीपल। तो हमने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि यार इंश्योरेंस पे किया। उस समय कोविड स्पेशली आ गया, तो मतलब कोविड से पहले तो मैं कहूँ लोग मोनेटाइजेशन पे कर ही रहते, थोड़ा काम वगैरह, साइजिंग वगैरह, बट कोविड आ गया तो उससे काफी चीजें चेंज हो गई। Okay. And what was your pre-COVID peak? Like, yeah, MAUs, how many like daily downloads? What numbers do you track? Like? Yeah, so we track our power users. Okay. जो हमारे अच्छे यूजर्स हैं, जो एंगेज में कंटिन्यूअसली हमारा ऐप यूज करते हैं लोग। मतलब जो मतलब multiple times in a day people who are using, those would be power users. तो लगभग 1 मिलियन पावर यूजर्स हैं हमारे। Okay. तो वैसे मतलब उन यूजर्स को हम ट्रैक करते Okay. And what about like onboarding? मतलब कितने new
यूजर्स ऐड हो रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट, यू वुड बी ट्रैकिंग दोस? हाँ, वो सब हमारा L1 मेट्रिक हो जाती है कि अब पावर यूजर बढ़ाना है तो अब नए यूजर भी आने चाहिए, रिटेन होने चाहिए, वो सारा वो एक लेवल नीचे वाली मेट्रिक्स हो जाती है। तो वो L1 मैट्रिक्स क्या है जो आप ट्रैक करते हो, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग? वही एक तो ये न्यू रजिस्ट्रेशंस कितने आ रहे हैं, फिर उसमें से कितने एक्टिवेट हो रहे हैं हमारे यूजर्स, ओके, एक्टिवेट होने के बाद कितने रिटेन कर रहे हैं लाइक आगे महीने तक, बस उनका रिटेंशन एंगेजमेंट दैट डिफाइंस कि कितने बन रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स है, बट हमारे पास एक अर्ली प्रॉक्सी भी है, वी नो कि कौन हमारा पावर यूजर बनता है। अगर वो शुरू के 2-3 दिन में इतना ये चीजें कर लेगा तो हमें पता है ओके यूजर बन जाएगा मोस्ट लाइकली विद अ प्रोबेबिलिटी। ओके, वो एक लीड मेट्रिक हो जाती है टू सी कि अच्छा लोग जो आ रहे हैं वो ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डू यू डू एनीथिंग टू ऑप्टिमाइज कि वो 2-3 दिन में वो चीजें करा देना लोगों से? व्हाट डू यू डू, लाइक जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड वो क्या क्या चीजें हैं जिससे यू आर एबल टू जज कि ये पावर यूजर? एजुकेशन होती है, मतलब मोस्टली इट्स कि आप कैसे एजुकेट कर सकते हो उसको एक उस वे में कि उसको समझ आ जाएगी वैल्यू क्या है, कि अगर बंदा ट्रांजैक्शन लिखेगा ही नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले का एसएमएस चला जाता है या रिमाइंडर चला जाता है, या उस मतलब अगर वो पेमेंट नहीं कलेक्ट करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा ऑटो रिकंसिलिएशन का, ऐसी कुछ चीजें हैं। रिमाइंडर भेज देगा तो उसको समझ जाएगा कि वो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेज सकता हूँ। तो एजुकेशन है मोस्टली कि ये आप ये सब यूज कर सकते हो, उसकी फिर वैल्यू उसको समझ आती है कि अरे ये प्लेटफॉर्म यूज करने की वैल्यू है ओवर माय कॉपी। ओके ओके ओके। तो जिसने फर्स्ट फ्यू डेज में फीचर्स एक्सप्लोर कर लिए मींस वो फैन बन जाएगा बेसिकली? हाँ, वो मतलब उसकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो पावर यूजर। जो शुरू में आया उसने फीचर एक्सप्लोर नहीं किया, चला गया, तो फिर उसको वैल्यू ही समझ नहीं आई मोस्ट, फिर उसको हमें रीसेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको वैल्यू पर भिजवानी पड़ती है। तो आप कैसे एक्टिवेट करते हो सो दैट पीपल बिकम पावर यूजर्स? लाइक is it like giving some gamification in it to make them try out all those features, या कैसे करते हो? मतलब गेमिफिकेशन भी रहता है, एजुकेशन रहती है मोस्टली। एजुकेशन कैसे, लाइक कोई वीडियो पॉपअप हो जाता है या? हाँ, वीडियो है, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें हम अलग अलग मोमेंट पे ट्राई करते हैं। नोटिफिकेशंस, इट्स अ होल जर्नी, राइट? इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग कि आपके नोटिफिकेशंस की भी एक जर्नी होगी, फिर आपके इन-ऐप नोटिफिकेशंस होंगे, फिर आपको आप जब फीचर के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको नीचे कुछ टिप्स वगैरह चीजें मिल जाएंगी, कुछ जब वहां से आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा कि आपने उधार लिख लिया, आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा कि अच्छा अब आपको पता है आप रिमाइंडर भी भेज सकते हो। So it's a mixture of entire journey of how you use different things to give that experience. Okay, okay. And ठीक है, got it. So now after second wave you started the monetization experiments again. So what all did you do after second wave for monetization? तो monetization के लिए अगेन मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने काफी पहले तो इम्पैक्ट स्टडी ही की, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, हमने पूरा मार्केट स्कैन किया कि क्या चल रहा है, राइट? बहुत सारे लाइक किरानाज और लाइक एमएसएमईज के लिए काफी नए नए तरह के बिजनेसेस आ रहे थे, जैसे कोई इनवॉइसिंग के लिए चार्ज कर रहा है, क्लियर टैक्स अलग ये के लिए कर रहे हैं, राइट? और पेमेंट हो रहा है, लेंडिंग हो रही है, और हमारे बहुत सारे मोबाइल यूजर्स हैं तो मोबाइल रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स वो सब हो रहा है। इंश्योरेंस, कोविड के बाद तो इंश्योरेंस एक चीज हो गई थी, तो इंश्योरेंस के काफी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हमने, काफी लर्निंग्स ली, लोगों से, फाउंडर्स से बातें की, कहाँ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी। फाइनली मतलब कि हम लोगों को लगा कि लेंडिंग एक कोर यूजर प्रॉब्लम भी है। वर्किंग कैपिटल की यूजर से अगर बात करो तो उसके लिए दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो कि भाई जो मैंने उधार दे रखा है मार्केट में वो वापस कैसे लाऊं, राइट? रिकवरी ऑफ ड्यूज। सेकंड इज वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल। बेसिकली ये उनके लिए मेजर इश्यूज हमें समझ आते हैं ना, एटलीस्ट यूजर प्रॉब्लम। और हमें लगता है कि हम वेल पोजिशन्ड भी हैं गिवन जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट फ्लो हम डिजिटाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पे बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू अदर ऑल द अदर थिंग्स दैट वी एक्सप्लोर। ये हमारी स्ट्रेंथ और यूजर प्रॉब्लम मिलके दिस सेंस। What were some of those experiments? Like some highlights you can share? जैसे And what you learned from those experiments, like learnings from the experiments also. तुम जैसे हमारे काफी यूजर्स हमारे एक मोबाइल या आप कह दो डिजिटल सर्विसेज टाइप के हैं, राइट? जो मोबाइल रिचार्जेस कर रहे हैं, लोगों के लिए मनी ट्रांसफर कर रहे हैं,
राइट। तो हमने उन सबको के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए कि क्या हम उनको बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, टू यू नो लाइक डू मनी ट्रांसफर्स फॉर कस्टमर्स, डू मोबाइल रिचार्जेस। उससे हमें यही समझ आया कि मार्जिन बहुत कम है इस बिजनेस में, एंड यूजर रिटेलर को भी कुछ खास मार्जिन मिलता नहीं है उसमें। हम एक और प्लेयर आ जाए तो वो वैसे ही बहुत मार्जिन कम हो जाता है, एंड रिटेलर्स के लिए द ओनली रीजन टू स्ट्रिक ऑन अ प्लेटफॉर्म इज लाइक कि वो कितना कमीशन ले रहा है। ओके। तो मतलब मैं इतनी हाई क्वालिटी रेवेन्यू लगी नहीं पर्सनली कि मतलब इस रेवेन्यू के पीछे जाएं और फिर हल छोटा सा मार्जिन है तो वो। So these would be like mobile recharge stores या ticket booking like हाँ, टिकट बुकिंग, मोबाइल बिल okay. पेमेंट्स, bill payment, ठीक है। वो सब चीजें जो है। देखिए इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम, पेमेंट वॉल्यूम तो हम काफी बड़ी बड़ी पेमेंट वॉल्यूम कर सकते हैं। मार्जिन कम है, ओके वो बहुत ज्यादा सेंस नहीं बना रहा था। ओके, ठीक है। What else did you try? फिर हमने ये कोविड के टाइम इंश्योरेंस वाली ट्राई। इंश्योरेंस में भी वही समझ आया कि ऐसा कोई पुल नहीं है, मतलब अगेन मैं नहीं कहूंगा कि हमने इंश्योरेंस बहुत अच्छे से ट्राई किया है। ऑनेस्टली हम लोगों ने कोई एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, नहीं हुआ तो चलो ठीक है, इतना टाइम नहीं देना है करके। कोई अर्ली साइंस ऑफ सक्सेस नहीं थे उसमें, अर्ली साइंस, बट आई बिलीव कि वहां पे अगर ढंग से कोई करे लग के तो वहां पे निकाला जा सकता है जूस। तभी हमने उसको इतना लग के नहीं किया है अच्छे से। मतलब इट्स नॉट अ लो हैंगिंग फ्रूट, उस पे इट विल नीड मोर इन्वेस्टमेंट। आप अपने आप पे लगा दोगे कि इंश्योरेंस मिल रहा है खरीद लो, बटन दबा दो तो लोग खरीद लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और फिर मे बी आप अडॉप्शन ला सकते हो, लोग आपको पे कर सकते हैं। बट बस ऐसे कि बैंक का इंश्योरेंस का पोस्टर चिपका दिया और आप खरीद लो तो वो तो नहीं होगा। And this you're talking about health insurance या like हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड के टाइम हमने हेल्थ इंश्योरेंस मोस्टली किया था। ठीक है, ओके। तो you also did an experiment on OK stores ना, which what was that? ओके शॉप। OK shop, okay. हाँ, तो ओके शॉप हमने किया एक्चुअली। यस, ओके शॉप में हमारा कोविड के बाद का ही वो था कि कोविड जब एक्चुअली वो तो हमने वेव्स के बीच में ही करा था, वेव्स के बाद किया था। तो वेव्स के बीच में ही मोस्टली था कि यार अगेन दुकानें बंद हो रही है, लोगों का कर्फ्यू है, आपको अगर बगल वाले दुकान से खरीदना है तो आप कैसे खरीदोगे? तो व्हाई नॉट एबल पीपल टू क्रिएट डिजिटल स्टोर्स एंड देन यू नो नियर बाय एरिया कैन कम एंड बाय। तो उसमें भी मतलब वही है, उसमें वो बहुत ज्यादा है, मतलब लोग आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगे अगर आप बोलोगे कि यार डिजिटल स्टोर बनाना है, तो एवरीवन विल डाउनलोड योर ऐप। एटलीस्ट उस सबका एवरीवन वाज डाउनलोडिंग द ऐप, बट उसमें वही होता था कि रिटेन नहीं करते थे लोग। ओके, उसमें बिकॉज वो बहुत स्टैंड अलोन साउंड कर रहा है मुझे। उसमें इट इज नॉट लिंक टू योर इन्वेंट्री, आपने कुछ लिस्ट कर दिया, उसका प्राइस बदल गया, आपकी इन्वेंट्री खत्म हो गई। प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बहुत बात की प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम है कि वो तो आदमी ओके, रेस्टोरेंट मेन्यू चेंज होता है यार, सेम ही रहता है, मिलता नहीं है, आपने बना दिया, लेकिन अब आप भेजो कहाँ उसको? आपने चलो मैंने लिंक बना दिया आपकी कि कस्टमर एक्विजिशन, लेकिन अब हर स्टोर्स आप कहाँ डालो? आप व्हाट्सएप पे स्पैम कर दोगे 10 ग्रुप को, बट शुरू में 2-4 लीड आने थे, आ गए, उसके बाद कोई आएगा? आप फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, कोई लीड आता नहीं है। पैसा खर्च करना पड़ता है आपको लीड लाने के लिए, और मतलब उसमें कंटिन्यूड एफर्ट्स डालने पड़ते हैं मार्केटिंग पे। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने एक बार लिंक डाला उस पर कन्वर्जन मतलब बहुत ज्यादा उधर कस्टमर, तो लोग वो डिसहार्टेंड हो जाते थे 5-6 दिन में कि यार मैंने तो भेज लिया इधर उधर, हर चीज करके देख ली, इस पे कुछ आता तो है नहीं, हो गया आप स्टोर का कर। तो उनके लिए कस्टमर वो ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है। Got it. Okay. And this is similar to what दुकान does ना, but this is to larger D2C brands जो पैसा कर रहे हैं, राइट, जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे यूजर्स, उनके पास एक नीश प्रोडक्ट है कि यूजर उनकी वेबसाइट पे आके खरीद रहा है। किराना स्टोर पे तो नीश प्रोडक्ट भी नहीं है ना, मतलब वो बिग बास्केट से, अगर वो ऑनलाइन खरीद ही रहा है तो वो बिग बास्केट से खरीद लेगा, या कहीं जो भी एक्सपेंसिव से खरीद लेगा, फिर वो तो मतलब दुकान is going more towards the Shopify way basically. More D2C stores, more
specialized niche products. Okay. That's what Okay. we- Okay. Okay. So tell me about the lending play then. Like, have you launched it full-fledged? What is the way in which you are running it? Are you tying up with NBFCs or like, who does credit underwriting? मतलब पूरे उसके मैकेनिक कैसे है? तो क्रेडिट अंडरराइटिंग तो अभी तो हम ही करते हैं मोस्टली, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब हमारे कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं एनबीएफसी पार्टनर्स के साथ, उनकी व्यूज होते हैं कि वो क्रेडिट पॉलिसीज में क्या देखना चाहते हैं, उनके अंडरराइटिंग क्राइटेरिया क्या है, बट हम एडिशनल अंडरराइटिंग अपने सेंस करते हैं बिकॉज ऑफ द डेटा दैट वी कलेक्ट, जो विजिबिलिटी हमें है, एंड वी हैव सीन कि वो एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट देता है टू दी क्राइटेरिया विच द एनबीएफसी हैज। Okay. तो उनका क्राइटेरिया होता है, बट हम उनको हेल्प करते हैं अपने डेटा से, अंडरराइटिंग से, तो हम अपने इनपुट्स देते हैं। और हम लाइसेंस नहीं है अभी, वी डोंट हैव एनबीएफसी लाइसेंस, पार्टनर करते हैं उनके साथ और वो लोग लोन्स डिसबर्स करते हैं। बट हाँ, मतलब हम एक टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म की पोजीशनिंग रखते हैं। वी हैव द यूजर हु यूजेस आवर सॉफ्टवेयर, वी हैव इंटेलिजेंस बेसिस दैट डेटा which we give to you, and then you can disburse loans and earn some money. Okay. What is the ticket size of loans that you offer? मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, तो अभी हमने 25,000 रुपए 3 महीना का लोन, 50,000 रुपए 6 महीने का लोन, तो ये दो लोन्स हमने शुरू किए थे। नाउ वी आर डूइंग 1 लाख रुपी लोन। Okay. And इसमें like who qualifies for it? Like what is the qualifying criteria? You are basically targeting your 1 million power users for this. हाँ, सो बेसिकली वही है कि हम जो भी हमारा एम है कि हम जिन यूजर के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं को कि उनके हमें सबसे ज्यादा जानते हैं, उनका हमें डेटा है, हमें पता है वो बंदा डिसिप्लिन्ड है, इतने टाइम से ऐप यूज कर रहा है, ना उधार करता, लेन देन करता है, तो उन लोगों को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, धीरे धीरे उनको ओपन कर। लेंडिंग मतलब वही, आप ओपन करोगे तो सभी आ जाएंगे, मतलब डिमांड तो इज नॉट एट ऑल एन इशू। Okay. And what is the interest rates at which you lend money? मतलब हमारे डेली रीपेमेंट्स होते हैं, तो इफेक्टिवली हमारे लिए IRRs बढ़ जाते हैं, बट फॉर द यूजर मतलब वही है, वेल विद इन द रेंज है जो उनको बाकी फिनटेक, मतलब अलग अलग ऑफर्स रहते हैं 18 to 24 kind of मान लो। हाँ, वैसे डेली रीपेमेंट से उसकी वजह से हमारे थोड़े से IRR बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो है, बट या उसे जो मतलब बेसिकली थोड़ा फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग ऑन द यूजर प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड योर, मतलब वी डू सम फ्लेक्सिबल। तो daily repayment मतलब you take that NACH mandate for daily repayment, like हाँ, तो ये मैंडेट्स तो अभी हम काम कर रहे हैं, मैंडेट्स एक्चुअली हमारी हुई नहीं अभी तक, वो हम कर रहे हैं, बट अभी तो यूजर खुद ही आके डेली रीपे कर देता है ऐप। अच्छा, okay. तो अभी मतलब मैनुअल प्रोसेस है, he has to remember to, or he'll get a reminder notification or something. Okay. And can they choose, or is it only daily repayment? टिल नाउ इट्स बीन डेली। Okay. अब हम लोग थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, बिकॉज अब हमें काफी डेटा मिल गया है, गिवन मतलब 7-8 महीने का डेटा है हमारे पास, तो वी नो यूजर्स, मतलब इनफ डेटा सेट आ गया है कि अब हम एक बड़े सेट पे बता पा रहे हैं कि कितने % यूजर्स को अच्छा लग रहा है, कितनों को वीकली चाहिए, कितनों को ऑटो डेबिट्स चाहिए, तो उस बेसिस पे अब हम अपना रोड मैप थोड़ा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अभी तक Okay. तो 100% Daily repayment. Okay. क्योंकि that sounds very tedious. रोज के रोज आपको टीडीएस है, बट एक जो हमारा बेस है ना रिटेलर का, उनके लिए अच्छा भी है, बिकॉज वो बोलते हैं कि यार अगर मेरा डेली का इनकम है, मैं डेली पैसा कमाता हूँ, और अगर आप मुझसे डेली 200-300 रुपए मांगोगे, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा, बट अगर आप एक महीने में आके बोलोगे 20,000 रुपए दे दे, तो वो मेरे लिए एकदम से डिफिकल्ट हो जाएगा एक दिन देना। एक यूजर बेस के लिए हमारे लिए अच्छा भी है ये डेली रीपेमेंट, इसीलिए लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अदरवाइज पीपल हैव द ऑप्शन नॉट टू टेक द लोन, राइट। बट एक यूजर बेस ऐसा भी है जिसको बहुत टीडियस लगता है, जो कहता है कि यार ये क्या आप एवरीडे करवाते रहते हो। So do you NBFC criteria still apply, which means this person can't be new to credit, मतलब he must already have CIBIL score and मतलब bureau score होना चाहिए उसका, क्योंकि NBFC तो तभी lend करेंगे अगर bureau score already है। हाँ, मतलब कि हम लोग अभी ब्यूरो चेक है हमारा, बट अगेन हम कुछ NBFCs
मतलब बेसिकली थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब ऐसा 100% आप ऐसा नहीं है कि आप एनटीसी को दे ही नहीं सकते। So yeah, what is the qualifying criteria? मतलब is a CIBIL score necessary या नहीं तो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते हैं। जैसे जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं उनके साथ ये क्राइटेरिया रहता है कि यार इतना क्रेडिट स्कोर तो चाहिए ही, उसके एडिशन में हम आपका डेटा देखेंगे वगैरह, राइट। बट जो थोड़े लेस कंजर्वेटिव है, राइट, लाइक जो ज्यादा बिलीव कर रहे हैं डेटा की पावर पे, जो इस नरेटिव को बाय कर रहे हैं, राइट, तो वहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलो ठीक है, अगर इफ द यूजर हैज गुड विंटेज, गुड, तो वी कैन टेक दैट रिस्क और देखते हैं। रिजल्ट्स भी आ रहे हैं ठीक ठाक। मतलब अभी हमारा यूजर बेस में जितना हम देते हैं तो लगभग 20% 30% एनटीसी होता है। 30%, that's pretty amazing. 20-30, हाँ। Tell me how you crunch your data. आप एक सिंगल स्कोर बनाते हो या आप कोई मतलब वो उस डेटा से क्या फॉर अंडरराइटिंग क्या आउटपुट निकलता है? एक सिंगल स्कोर आता है लाइक ऑन अ स्कोर ऑफ 100 स्कोर नहीं निकलता बेसिकली, ये डिफरेंट, मतलब एक वो निकलता है कि मतलब एक्चुअली निकाल तो हम कुछ भी सकते हैं, मतलब जो जरूरत अभी हम ये निकालते हैं कि क्या ऑफर देना चाहिए इस बंदे, या तो कैसे निकालते हो आप? एसेंशियली हम करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास उसका एक तो पूरा डेटा है कि वो कितना उधार का लेन देन कर रहा है, कितने लोगों से कनेक्टेड है, किस तरह के लोगों से कनेक्टेड है, उसका बिहेवियर डेटा कि वो ऐप का यूजेज उसका कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिसिप्लिन्ड है, राइट। और ये सारी चीजें, और फिर मतलब और थोड़े एडिशनल जो एक्सटर्नल सोर्स की, अब सिबिल स्कोर चेक कर लिया, एसएमएस वगैरह की परमिशन है तो एसएमएस स्कैन करके देख लिया कि पुराने लोन्स तो नहीं है वगैरह, एंड मतलब उस तरह की चीजें कर ली। एंड फिर बेसिकली एक ऑफर बन के निकलता है कि भाई ये तो रिस्की ऑफर नहीं देना है, या ये अप्रूव्ड ऑफर देना है, इतने तक का दे सकते हैं इस इंटरेस्ट रेट। So basically, like somebody who's transacting in lakhs could get an offer of 50,000 or more. Somebody who's doing low value transactions, usko like 10,000, 15,000, 20,000 का offer मिलेगा. So that कितना offer करना है pre-approved, and if someone is risky, तो वो आप SMS से you will come to know just to avoid NPAs. Okay. हाँ, मतलब कि किसी को ऑफर, अब हर सबको ऑफर नहीं देते हम लोग, right? And what is your NPA rate? अभी तो बहुत ही अर्ली सिग्नल से 7-8 हुए हैं, तो मतलब ठीक है, मतलब अच्छे ही है, इंडस्ट्री से बेटर है अभी। ओके। एंड इसमें आपकी अर्निंग कितनी होती है एज द प्लेटफॉर्म? तो अगेन मतलब सब कुछ है ना, आपके डिफरेंट पार्टनर्स के साथ डिफरेंट है, मतलब इट्स अ स्पेक्ट्रम कि अगर मान लो मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला पार्टनर कह रहा है नहीं मेरे को रिस्क लेना है, तो मुझे फिर बस लीड जेन या एक सर्विसिंग फी टाइप मिलेगी। बट अगर मैं भी अपना रिस्क ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं हम भी रिस्क लेंगे, अगर लॉस होगा तो हम भी भरेंगे, तो फिर हमारा रेव शेयर ज्यादा हो जाता है। तो इट्स अ स्पेक्ट्रम विद डिफरेंट पार्टनर्स की किससे हम कैसी रिलेशनशिप करना चाहते हैं। ओवरऑल व्हेन यू टेक रिस्क, दैट इज व्हाट इंडस्ट्री में इसको FLDG कहते हैं ना, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। सो दैट व्हेन यू आर डूइंग FLDG इट मींस यू आर टेकिंग रिस्क बेसिकली। हाँ, मतलब कि FLDG आजकल थोड़ा RBI इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आजकल अब FLDG इज एसेंशियली कि आप 100% रिस्क ले रहे होगे कि आपका पोर्टफोलियो 10% से खराब तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आप 10% से भी खराब कर दोगे। तो उसके बाद भी मतलब एक और लेयर होती है, राइट, कि चलो मैं 10% FLDG हटा दो, हम ये जो भी लॉस होगा हम 50-50 बांट लेंगे, या जो भी लॉस 60-40 बांट लेंगे, जो भी। Okay. RBI क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है FLDG? Like, are they promoting some other model? अगेन थोड़ा अनक्लियर है, मतलब हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं सारे अपडेट्स को, और मतलब रिसर्च कर रहे हैं। गिवन हम लोग भी नए हैं इस सिस्टम में, तो थोड़ा लर्निंग कर्व ज्यादा है। बट हाँ, मतलब जो इनिशियल लग रहा है कि मतलब रेगुलेटर थोड़ा तो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं वो लोग कि मतलब, एंड ऑफ कोर्स राइट, लाइक देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मतलब दीस Chinese loan apps and that whole case, एक कोई suicide case, couple of suicide cases have also happened around those Chinese loan falling apps. in debt trap and like ये सब Chinese companies, तो मतलब वही है। तो आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए तो मतलब वो कुछ इनिशिएटिव्स तो करेंगे ही। आई थिंक हम एंड वी आर आल्सो ऑन साइड ऑफ दैट ओनली कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए। Okay. So I also read that RBI is
going to put in restrictions on what is the data that a fintech can share with NBFCs, that data sharing ke around. So won't that like affect your model, or like by that time you would want to become an NBFC of your own? हाँ, वही तो 2 ऑप्शन यही। तो पहली बात तो सी डेटा शेयरिंग में भी अभी भी ऐसा हम कुछ डेटा शेयर करते नहीं है, वेरी फ्रैंकली। हम लोग Okay. अपना एक इनपुट, एक सब कुछ हमारे डेटा के बेसिस पे, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्शन कि या स्कोर मान लो, और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रेफरेंस होते हैं कि तुम मुझे बस ओके क्रेडिट स्कोर बता दो इसका कितना है, कि मुझे तुम Okay. ऑफर बता दोगे इसको तुम कितना देना चाहते हो वगैरह। तो हम डेटा वैसे भी आजकल अभी कोई खास शेयर करते नहीं है एनबीएफसी से। तो अगेन उसमें मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, बट हाँ, खुद का एनबीएफसी लाइसेंस होगा तो आई थिंक और इजियर हो जाएगा। And you've applied? Like, is that in the roadmap? हाँ, मतलब अप्लाई तो नहीं किया है अभी, बट कुछ कुछ उस पर डिस्कशंस वगैरह ही कर रहे हैं। You know, so this audience of traders and merchants is something which Bharat Pay also is targeting for the same product of lending. So wouldn't, as an outsider, I would feel के because Bharat Pay को actual payment data मिल रहा है, तो वो quality of data is higher there, ना? Because it is not inputted by a user, but it is actual real transaction नहीं, data. मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें भी। देखो इंडियन बहुत तेज है, मतलब उनको जो करना है तरीके, ऐसा नहीं है कि वो सारा डेटा रियल ही है। मुझे करना है, मैं अपने क्यूआर कोड पे खुद ही के बैंक अकाउंट में कितने Yeah, ट्रांजेक्शन okay. कर सकता हूँ और आपको अच्छा मतलब किस लेवल दे सकता हूँ। तो फ्रॉड का तो कंट्रोल करना मतलब हेयर एंड देयर लाइक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व है। बट आई अग्री कि हाँ, उनके पास पेमेंट, उनका आई थिंक जो मेजर लेवरेज है अंडरराइटिंग पे, तो चलो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, एटलीस्ट एक यूजर जो बहुत समय से आपके साथ है ना, तो उस पे आपको बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं मिलेगा कि ये डेटा वर्सेस ये डेटा से आप सिमिलर लोग हैं। जो लेवरेज वो कलेक्शंस पे मेजर है कि आप ईएमआई डेली अपने क्यूआर कोड से काटते रह सकते हो। Okay, okay, तो, okay, okay. वो नहीं करना कि खुद आके पे नहीं करना, और वो है। बट अगेन वहां पे भी नुकसान है कि आप काट सकते हो, बट फिर दूसरा क्यूआर कोड लगा, बंदे जिसको नहीं देना है वो फिर दूसरा क्यूआर कोड लगा लेगा और नहीं देगा, राइट? तो अब वो इंटेंट खराब है उसको, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। बट एटलीस्ट जो गुड इंटेंट वाले लोग हैं उससे आप रिकलेक्ट कर सकते हो, आपके कॉस्ट थोड़े कम हो जाते हैं, आपको रिमाइंड नहीं करना वगैरह वगैरह। तो वो एक डेफिनेटली लेवरेज है। लाइक उस पे हम लोग भी ऑटो डेबिट्स वगैरह पे काम करें, बट ओवरऑल डेटा पे तो मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरराइटिंग पे बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है। और दूसरा कॉस्ट स्ट्रक्चर पे, क्योंकि गिवन उनका क्यूआर कोड है तो उनको वो लगाने जाना पड़ता है, उसका खर्चा होता है, फिर वो रिटेल लोगों मल्टीपल होते हैं तो आपको पूरा हंटिंग फार्मिंग करनी है, उसका खर्चा होता है। तो ओवरऑल कॉस्ट में आई थिंक हम लोग बेटर करते हैं ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में। Okay. So, what is your USP if you were pitching to a VC that you are enabling lending for this market of merchants and traders? So, what is it that really sets you apart I from think all the other? Because this is a crowded space. Now, there are a lot of well-funded companies in this space. So, नहीं, तो पहली बात तो यूजर हमारा कॉम्पोजिशन जो है, जो हमारे पास यूजर है, वो यूजर अभी चलो मान 2-4 कंपनीज के पास होगा, वो उस पे इतना क्राउड है ही नहीं, राइट? टियर 3+ मर्चेंट्स जो हैं, okay. कस्टमर्स, वहां पे जो एक खाता बुक जो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो है, क्यूआर कोड प्लेयर्स भी हैं, मतलब और हो जाएंगे अगले 1-2 साल में और ज्यादा आ जाएंगे, तो क्यूआर कोड। बट इसके अलावा कोई खास नहीं है, लाइक ना बैंक्स ना दूसरे फिनटेक्स वगैरह वगैरह। Right. तो Okay. काफी बड़ा मार्केट है एक्चुअली, मतलब इट्स लाइक $500 बिलियन का इनफॉर्मल क्रेडिट साल Wow. भर दिया जाता है, राइट? लाइक तो इतना कैपिटल लेंडिंग में, राइट? लाइक स्केलिंग अप इज ऑलवेज लाइक अ सप्लाई चैलेंज, एटलीस्ट अभी तक जो मुझे समझ आया है, मोर देन अ डिमांड चैलेंज। और लोगों को आप लोन दोगे, लोग तो लेने के लिए आ जाएंगे एटलीस्ट, मतलब कई लोग नहीं भी आएंगे बट कई लोग आ जाएंगे, बट आप इतना कैपिटल कहाँ से लाओगे इनको देने के लिए? So it's also not a winner take all market generally. Yeah, you're right. Yes, it's not a winner take all market. Okay. ठीक. And what is, I mean, for the collection strategies, like, do you also do like calling and reminding and all of those things, like if someone doesn't pay? Yeah, वो सब, वो तो स्टैंडर्ड जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब तो करते ही हैं।
एटलीस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स थोड़ा लेवरेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हम एडिशनल क्या कर सकते हैं इंडस्ट्री से बेटर। तो उसके लिए मतलब कि ये ऑटो डेबिट्स और ये सारी चीजें अगर हम कर पाए, एक्सपीरियंस बेटर बना पाए, तो आई थिंक विल बी डूइंग बेटर देन इंडस्ट्री। This auto debit will be through NACH only, like NACH allows. NACH बैंक मैंडेट है आजकल, डेबिट कार्ड मैंडेट है, यूपीआई मैंडेट है। अच्छा, UPI also you can do daily like Google a Pay, auto debit. आप उस पे रिकरिंग लगा सकते हो अपना सेटअप। अच्छा, okay. So that then makes it like borrow and forget kind of a product then. वो उसके डेली बेसिस में चले जाएगा, there is no risk of bouncing and all of that. Okay, got it. Okay. So what is the way in which you are building supply? Like you said, ये supply challenge है ज़्यादा, तो supply of money के लिए you would probably need to do a lot of trust building, credibility building. तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? To वही है, हम attract लोग more एनबीएफसी से lenders? पार्टनरशिप कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पोर्टफोलियो पे कि यार हम जो यूजर को आप रिस्की मानते हो उसको हम दे पा रहे हैं अच्छे लोन, राइट? और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यू नो लाइक नया मार्केट ओपन हो रहा है, अब आप भी आओ। अब ऑफ कोर्स यू नो नया मार्केट ओपन होता है तो लोग थोड़ा तो धीरे धीरे ही आते हैं, मतलब उतना तेज नहीं आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं और वो आते हैं, तो उन अर्ली अडॉप्टर्स के साथ काम कर रहे हैं और फिर और लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। Okay, basically you have to show them the money, like in short, like that there is money बड़ा to be मार्केट made. है, यूजफुल है, मतलब आप जिस जनता को मतलब डिमांड है और मतलब हम अच्छा लोन्स भी दे रहे हैं, अगर आपको पैसा बनाना है तो आप हमसे जुड़ लो। Okay. And because आप डेली रीपेमेंट के कारण आपका आय हायर है, तो it is more profitable business for these NBFCs to work with you. Okay. So this 2019 में the funds you raised, what have you used them for? Like about almost 80 million plus you raised. तो मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब होता है एक तो खर्चा, जो भी हमारा डेटाबेसेस है, सर्वर्स हैं, एसएमएस नोटिफिकेशंस वगैरह जाते हैं, तो इस पे एक खर्चा होता है। और दूसरा सैलरी का खर्चा होता है मेजर, जो हमारी टीम है। फिर मार्केटिंग वगैरह हम एक जो भी खर्चा करते हैं, ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा नहीं करते, बट एक खर्चा तो होता ही है। एंड उसके अलावा यही है, लेंडिंग में अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनपीएस जो भी मतलब तो मतलब मोस्ट ऑफ जो हमने रेस किया है अभी तक, वो हमने जो खर्च किया है वो यही सैलरीज, इंफ्रा, मार्केटिंग, इस पर खर्च किया है। what is your customer acquisition cost average या वाले for a power user? Like ये थोड़ी डिटेल्स हो जाएंगी इसको अभी मैं okay. करूंगा। ठीक है। मतलब बेटर देन इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या नॉर्म, मतलब इंडस्ट्री नॉर्म जो आप टिपिकल फीट ऑन स्ट्रीट वाले देखेंगे ना, कि आप जैसे भारत पे इज फीट ऑन स्ट्रीट, आई थिंक। हाँ, भारत जैसे फीट ऑन स्ट्रीट है, तो हम उससे मतलब मीनिंगफुली बेटर करते हैं, बिकॉज हमारा डिजिटल है सब कुछ, इवन कस्टमर सपोर्ट, एवरीथिंग इज लाइक डिजिटल। और पुल भी है एक मार्केट में कि कई लोग खुद से ही सर्च कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट वायरलिटी है, तो ऑर्गेनिक भी, जैसे हमारा ये मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइक अभी करंटली 70-80% हमारा ऑर्गेनिक आता है ट्रैफिक। वाओ, ओके, दैट्स अमेजिंग। तो मतलब तो उस वजह से हमारा ब्लेंडेड जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाता है। Okay, amazing. Okay. And what is your headcount today? We are around 90 odd folks. Okay. Pretty lean team. हाँ, pretty lean. Okay. So, do you need funds now in the short term, like in the next year or two, or next year or 2019? Yes, definitely. अभी आगे जाते हुए जैसे जैसे हम इस बिजनेस को ग्रो करेंगे तो फंड्स तो डेफिनेटली चाहिए होंगे। Especially lending business, so it's a capital intensive business also. Capital is basically a raw material there, so you will need that. Okay. So what do you see as the big challenges for you in the next 2 years? I think the biggest challenge है वो यही है कि how do you stay relevant for your users in so much competition? Okay. So what are you doing to remain relevant? Are you, for example, getting into QR codes also? What are the product features that you want to launch to remain relevant? तो I think the one thing that we are doing is कि अपने users का अभी हम एक खाता लिखते हैं कह के कि आपका कनेक्शन फास्ट हो रहा है,
राइट। तो अभी जितना कलेक्शन फास्ट होता है, हमें अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम और फास्ट कर सकते हैं, या फिर जिससे नहीं आ रहा है उससे ला सकते हैं, राइट। सो बेसिकली हेल्पिंग देम विद द रिकवरी मोर, हाउ giving them features like IVR calls, more strict reminders, legal notices, etc. etc. Okay, this would be, I'm sure, not a free feature, ना IVR, legal notices. अगर हमें खर्चा आ रहा है तो हम चाहेंगे कि, और अगर हम यूजर्स को वैल्यू दे रहे हैं तो यूजर्स भी हमें पे कर लेंगे। जब ये रिमाइंडर्स जाते हैं टू द पर्सन हु हैज टू पे बैक, उसमें पेमेंट लिंक भी होता है क्या? लाइक कैन पीपल पे ऑनलाइन? पेमेंट लिंक भी होता है उसके अंदर। Okay. So in a way you are also capturing some part of payment data. हाँ, बट पेमेंट लिंक पे अभी मतलब ऐसे बहुत ज्यादा अडॉप्शन नहीं आता, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि कस्टमर जो है, एंड कस्टमर, उसको वो लिंक पे क्लिक करने से डरता है, क्योंकि एक तो सबको ही बोलता भी यही है ना कि भाई रैंडम लिंक पे मत क्लिक करो, राइट। तो लिंक उसको लगता है पेमेंट करना है, मैं फोन पे से कर दूंगा, पेटीएम से। हेल्प मी अंडरस्टैंड आपका यूजर बेस कैसा है? लाइक व्हाट इज द एवरेज टर्नओवर, या व्हाट इज द एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो वो ओके क्रेडिट के थ्रू कलेक्ट करते हैं? बहुत फ्रैगमेंटेड है पूरा, बट एवरेज का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा यहाँ पे। मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, मे बी कि आप टियर 3 रीजन्स में या छोटे शहरों में आप किराने की दुकान देखते हो, पान की दुकान देखते हो, मोबाइल की दुकान देखते हो जो रिचार्ज कर रहा होता है, ईयरफोन बेच रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, मेडिकल दुकान देखते हो। तो ये इस तरह के लोग हमारे यूज महीने के 40-50 हजार रुपए तो कमा ही लेते हैं, मतलब अच्छे यूजर्स ज्यादा भी कमा लेते हैं कहीं, मतलब इनकम कर रहा हूँ। So what is your personal leadership style? How do you manage people? आई थिंक लाइक जो मेन लर्निंग रही है कि वो कल्चर इम्पोर्टेंट होता है, कि आप जो भी कल्चर बिल्ड करना चाहो वो कल्चर बिल्ड कर पाओ। एंड स्पेशली ऑन द कल्चर साइड, मतलब व्हाट वी हैव सीन इज की एम्पावरिंग पीपल, राइट, व्हिच इज की गिविंग देम द ऑटोनॉमी टू डू थिंग्स, अकाउंटेबिलिटी पूरा वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एटलीस्ट हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में तो वी आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपेंस, कहाँ हम अच्छा नहीं कर रहे, कहाँ अच्छा कर रहे हैं। हाउ डू यू ट्रैक परफॉर्मेंस के लोग परफॉर्म कर रहे हैं? मतलब वो ट्रस्टिंग का एक नेगेटिव साइड भी होता है ना, बहुत ट्रस्ट करो तो पीपल कैन टेक एडवांटेज। नहीं, बट आपको बैलेंस कैसे, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है कि आपके गोल्स हैं, राइट, कि यार ये प्रोडक्ट के मेरे को ये मैट्रिक्स है कि मेरे को इतनी ग्रोथ चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार आए, और नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने काम नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं आई, और हो सकता है मैं खुद हमने कितनी बार काम किया नहीं ला पाए ग्रोथ, कोई बात नहीं, क्यों नहीं ला पाए ये अगर समझते हैं, अगली बार क्या करेंगे कि जिससे आएगी, वो आपको समझ आ जाता है किसी से इंटरेक्ट करके, ये सही में चिल मार रहा है या सही में एफर्ट मार रहा है, बट नहीं हो रहा, विच इज ओके। Okay. You recently had some layoffs also, no? Was that like a personally tough time for you to do that? Or like, टफ तो था, बट रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी ही थी, स्पेशली मतलब कि गिवन जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ओके शॉप, ओके स्टाफ, उन सब के अराउंड, वो हमारे लिए एटलीस्ट इतने यूजफुल नहीं थे इन टर्म्स ऑफ आवर बिजनेस, तो हमने वो चीजें बंद की, थोड़ा फिनटेक फोकस किया, ये लेंडिंग फोकस, तो भी हमें नए तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड थी। तो बट डिफिकल्ट तो डेफिनेटली थी। आई थिंक हम लोगों ने कंपनी में इतना टाइम स्पेंड किया है अपने एम्प्लॉइज के साथ, मतलब हर बंदे से 1-on-1s किए हैं, सबको समझाया है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, टीम मीटिंग्स की हैं, जो लोग गए उनसे एक से बात की है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको हेल्प किया है दूसरी जॉब्स लाने में, मतलब मोस्ट ऑफ देम को हम दूसरी जॉब्स। These people couldn't be like retrained for other stuff. Like what were the kind of profiles that you had to lay off? मतलब डिफरेंट थी, मतलब एक जैसे यूजर रिसर्च करके, मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट था हमारा, राइट, बट हमें फ्रैंकली जो लर्निंग मिली वो यही लगी कि यार जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसकी कोर जॉब है यूजर रिसर्च। हाँ, बिल्कुल, मतलब अगर उसके लिए भी अब आप एक टीम रख रहे हो और वो काम डेलीगेट कर रहे हो, तो फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर नहीं, या प्रोजेक्ट मैनेजर रह जाते हो शायद, राइट, कि चलो आप प्रोडक्ट मैनेजर का काम ही है कि वो यूजर से बात करे, यूजर की प्रॉब्लम समझे, वो उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिजाइनर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, जो भी ठीक है, बट यूजर से टच में रहना तो प्रोडक्ट मैनेजर का ही काम है।
हाँ, उसके लिए भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। और बीच में हम थोड़ा वी लॉस्ट आवर वे, हम लोगों ने एक यूजर रिसर्च डिपार्टमेंट पूरा रख लिया था कि प्रोडक्ट मैनेजर्स वर गिविंग वर्क टू यूजर रिसर्चर्स एंड यूजर रिसर्चर्स वर Okay. डूइंग एंड कमिंग साइट्स, व्हिच रियली डिडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, मतलब इन हाइंडसाइट किया ओके था। स्टाफ की आपने अभी तक बात नहीं करी है. What was ओके स्टाफ? ओके स्टाफ वाज अ सैलरी मैनेजमेंट ऐप फॉर एम्प्लॉयर्स कि आप अच्छा। अपने एम्प्लॉयज के सैलरी Payroll. अटेंडेंस मैनेज कर लो। बट Okay. वही वो उन लोगों के लिए ज्यादा काम का है जिनके बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। हमारे यूजर्स के ऐसे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ा काम का है। Okay. So my last question to you, any advice you want to share with young aspiring founders? I don't think doing a startup is necessary, or doing a startup कोई ऐसा है कि आप स्टार्टअप नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। स्टार्टअप इज वन ऑफ द थिंग्स जो लोगों करते हैं। दुनिया में लोग और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं जो स्टार्टअप से 1000 गुना इंटरेस्टिंग होती है। आई थिंक यू शुड बी डूइंग स्टार्टअप ओनली in case you can't stop yourself from starting up, but if you are doing it कि बाकी लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं और मुझे भी करना है और यही सबसे कूल चीज, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत कूल चीजें हैं दुनिया में करने के लिए। And that brings us to the end of this conversation. I want to ask you for a favor now. Did you like listening to this show? I'd love to hear your feedback about it. Do you have your own startup ideas? I'd love to hear them. Do you have questions for any of the guests that you heard about in this show? I'd love to get your questions and pass them on to the guests. Write to me at ad@thepodium.in. That's ad@thepodium.in.